Good morning, students. I hope that you students are fine and well and continuing your studies. As my last lecture, I had told you about business studies in lecture number 1 and lecture number 2. Today we are going to continue lecture number 3. In lecture number 3, we have to know that the important topic which you are going to get the class 11th exam also, and you are also going to get the class 12th exam also. Feature of business, characteristics of business की विशेषताएं क्या होती है, इसके फीचर्स क्या है, we are going to know about that. Before I proceed ahead this topic, just I want to clarify you once again about my past lecture which you have already seen on YouTube on your group. Now before I proceed ahead, first of all you know the meaning of business very well. आपको पता है कि बिजनेस होता क्या है. Business comes under the commerce sides. If you are taken already admission in the class 11 of commerce side, you have got the books of business study. So I had already discussed about the meaning of commerce, and now today, as continuing my past lecture where I had stopped, I had told you economic activities, non-economic activities, nature of business, everything I had explained in detail. Now, so today I am going to explain you features of business. Everyone is doing business, but before starting the business, you should know what is the features of business, what we get from business, what is the use of business, why we do business. Everybody knows that. हर एक बिजनेस की अपनी एक विशेषताएं होती है, एक फीचर्स होते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो उसके बारे में हम समझेंगे, जानेंगे. सबसे पहले आपका पहला पॉइंट आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज. बिजनेस कम्स अंडर द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इसको हमको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट few students are newly, they don't know the meaning of economic activities. I am going to again tell you that when we talk about money, a work or activity performed by human being, we called as economic activities. इकोनॉमिक एक्टिविटीज इसको ये विशेषताएं हैं, ये फीचर्स है बिजनेस का, क्योंकि बिजनेस में हमको इनकम जनरेट होती है, वो इनकम इन द फॉर्म ऑफ मनी होती है. कोई भी बिजनेसमैन, एनी बिजनेसमैन इज डूइंग बिजनेस, ही और सी वांट्स प्रॉफिट. इट कम्स, जहां पैसे की बात है, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, इट कम्स अंडर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. So you know, I had given the only heading of the features of the business. In exam, if the question is going to come in long answer, if the question is going to come 3 marks question, 5 mark question, you have to be explain economic activities, you have to explain the material meaning of this, even this meaning, this, everyone you have to explain 2 lines, 3 lines. I will provide this all definition in notes on our WhatsApp group, or by office you will get the all topic notes. Today only I am going to discuss the detail what this topic means in business study, in features of business. What does this all mean? I am going to explain this only in detail. You listen carefully and understand and revise that what the sir is saying. Be careful. Now, economic activities comes under the features of business. इसको हम बिजनेस का फीचर्स मानते हैं. ये हमारे बिजनेस की सबसे पहली विशेषताएं है, जिसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नाम से जानते हैं. इसको क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द मनी. बिजनेस इज डन फॉर मनी, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ये हमारी एक विशेषताएं है, एक गुडविल है. अब नाउ सेकंड पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. Production of goods and services. कहेंगे सर what is this business? Production of goods and services. Yes, this is the feature of business. Without production, produce करना, to produce something, किसी चीज को बनाना, made up, किसी चीज को मेड करना, बनाना, प्रोडक्शन, उसको हम प्रोडक्शन कहते हैं. अब आप बताइए, प्रोडक्शन का मतलब to produce something which we get money for that ना. ये फीचर्स है, प्रोडक्शन
गुड्स सामान एंड सर्विसेज यू नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विसेज, आपको ऑलरेडी पता है, मैं फिर भी आपको ये लाइन आपको एक्सप्लेन करके समझा देता हूं कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है। बेटा जस्ट टेक एन एग्जांपल, ये फीचर्स ऑफ बिजनेस क्यों माना गया है, प्रोडक्शन को, किसी चीज को बनाना, किसी सामान को बनाना, प्रोड्यूस करना, और इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज, इसको हम फीचर्स ऑफ बिजनेस क्यों मानते हैं, व्हाई वी कम्स अंडर दिस ऑल द फीचर्स ऑफ बिजनेस। अब इसको हम आसानी से समझाते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मैं आपको समझा देता हूं एग्जांपल लेकर के। यहां पे आइए, पॉइंट नंबर 2 का एग्जांपल है ये, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल राम, हियर इज राम, he is a producer, ये हमारा प्रोड्यूसर है। what he is producing, suppose that he is producing, just ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्टली हमारे पास बिजनेस की ये विशेषता है, डायरेक्टली हमको क्या होता है, डायरेक्टली फिनिश गुड मिलता है, फिनिश मींस which has been completely produced by the producer, he or she may transfer in the form of services by the help of retailer, wholesaler in the market, we get a complete finished good। लेकिन ये फीचर्स प्रोडक्शन को इंक्लूड करता है, क्यों इंक्लूड करता है, ये फीचर्स क्या कहता है, प्रोडक्शन। अब एक मोबाइल, राम के पास एक मोबाइल फैक्ट्री है, इनके पास एक मोबाइल फैक्ट्री है, ध्यान से देखिएगा, मोबाइल फैक्ट्री है। फॉर एग्जांपल इनके पास ये मोबाइल, वीवो की मोबाइल फैक्ट्री है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने नंबर ऑफ क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल 2000 इन्होंने क्वांटिटी बनाई, क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया। इन्होंने इस मोबाइल को 2000, 40,000 या 1 लाख क्वांटिटी या पीस में इन्होंने इसको प्रोड्यूस किया, तो इसको जो प्रोड्यूस कर इन्होंने किया, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई, प्रोडक्शन हुई, इसमें हार्डवेयर लगे, सॉफ्टवेयर लगे, कई सारे मटेरियल्स लगे, कि सारी जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं मोबाइल के, सब कंप्लीट बना करके इन्होंने मोबाइल को प्रोड्यूस किया। जब इन्होंने मोबाइल को राम हैज प्रोड्यूस द मोबाइल इन द क्वांटिटी ऑफ 2000 पीसेस, इन्होंने क्वांटिटी में मोबाइल को प्रोड्यूस किया। अब इस मोबाइल में क्या होता है, इस मोबाइल में अब हमको कई सारे फीचर्स मिलेंगे, सर्विसेज मिलेंगी, कॉल्स मिलेंगे, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, कई सारी चीज मिलेंगे। ये हमारा प्रोडक्शन हो गया, ये हमारा बिजनेस का एक फीचर्स है। प्रोड्यूस किया इन्होंने इस चीज को प्रोड्यूस किया तो प्रोडक्शन बना। जब प्रोडक्शन हुआ तो क्या हुआ, वो मार्केट में धीरे रिटेलर के अकॉर्डिंग, सेल्समैन के अकॉर्डिंग, सब बिहाफ में ये मार्केट में जाएगा। तो मार्केट से हम क्या करेंगे, सपोज दैट यू वांट टू परचेज द मोबाइल ऑफ एनी दिस प्रोडक्ट Vivo, you want to purchase it, and what you will purchase? You will purchase the parts, the complete mobile. If you open this mobile, you will get many parts inside. That is done and produced by the producer. But quantity, what the quantity is saying that I had complete made production. मैंने प्रोडक्शन किया and customer and consumer will get the finished good. इसको हम फीचर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज यू नो वेरी वेल, सामान गुड्स को कहते हैं, सामान को कहते हैं किसी भी गुड्स का बनाना, मोबाइल का बनाना, ऑटोमोबाइल्स का बनाना, रेफ्रिजरेटर बनाना, ये सारे गुड्स हमारे हैं, ये सब मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो इट कम्स अंडर द प्रोसेस ऑफ फीचर्स ऑफ बिजनेस। नाउ थर्ड पॉइंट, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आपको मैंने बताया, हियर द एग्जांपल, any goods, any production took place in the firm or the business not for only self satisfaction, it is only for sales of goods and services, sales as earning profit। कोई भी सामान, कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है, वो मैन्युफैक्चरर अपने लिए नहीं बनाता है, फॉर कंज्यूमर, फॉर
बेचता है, सेल्स करता है, he or she get in the form of return, that is income, that is profit, that is money. That is also a very important feature, sales of goods and services under the business. Features of business and characteristics of business में हमारा sales and goods and services भी आता है। आप कहेंगे सर आपने प्रोडक्ट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बताई, देखो बेटा what the point here is having on board 4 point I has indicated you, but in class 12 you will get at least here 4 point here I have given and one is here remaining 5 point. 5 point I has indicated you, 5 point I has indicated you, but in 12th exam you will get, if long answer is there you will get at least 10 point, 8 point. Many features of business are there. आप business का मतलब समझ लो, इस पॉइंट को देखने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने आप से फीचर क्रिएट कर लोगे। अब मैं आपको बताता हूँ डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब मैं आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूंगा और इसका मतलब समझा करके लास्ट टॉपिक आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, सिर्फ आपको समझना है गुड्स सर्विसेज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये रेगुलर बेसिस, ध्यान से देखिएगा। रेगुलर बेसिस को मैं आपको समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, आज एग्जांपल मैं आपको मोबाइल का ही देता हूं रेगुलर बेसिस पे, ध्यान से देखिएगा। दिस इज द मोबाइल एंड डीलिंग इन गुड्स, हम डील करते हैं, एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर, रेगुलर मतलब प्रतिदिन, ऑन द बेसिस, जैसे हम बिजनेस क्या होता है हमारा बिजनेस रेगुलरली होता है, हम क्या करते हैं बिजनेस डेली बिजनेस हमारा होता है। जब कोई मैन्युफैक्चरिंग करेगा, जब कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज करेगा, वो बिजनेस फॉर्म में करेगा, तो बिजनेस का फीचर हमारा डेली रेगुलरली होगा। बिजनेस आप एक दिन करेंगे दूसरे दिन नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस का मतलब रेगुलर फॉर्म में होना चाहिए, रेगुलरिटी होना चाहिए, उसकी इनकम होनी चाहिए। अब ये नहीं कि हम आज किए बंद कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। ये बता रहा डीलिंग इन गुड्स, ये ऐसे गुड्स के सर्विसेज के साथ डील करता है जो रेगुलर बेसिस पे करता है। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूं आपको। दिस इज माय मोबाइल एंड आई एम नॉट अ बिजनेसमैन, आई एम नॉट अ बिजनेसमैन, बट सपोज दैट इफ आई वांट, मोबाइल का ले लीजिए, कार का ले लीजिए, आपने कार परचेस करी या मोबाइल परचेस करी, तो क्या हुआ उसमें, क्या होता है, आप जब आपको इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो आप उसको लॉस में सेल कर देते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, आपने 20 लाख का एक कार परचेस किया, कार परचेस किया, आफ्टर 5 ईयर आफ्टर आप क्या करोगे, इसको सेल करोगे, इसको सेल करोगे तो ये आपका रेगुलर बेसिस पे सेल नहीं होगा। अगर इसी कार को अगर इसी कार को हम बिजनेसमैन है, हमारे पास कार का शोरूम है, हम न्यूली जब भी सेल करेंगे तो हमें इनकम आ जाएगी, हमें प्रॉफिट आ जाएगा। अब मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं इर्रेगुलर हूं, लेकिन यहां रेगुलर फीचर में आ रहा है, बिजनेस के फीचर में रेगुलर आ रहा है, और मैं आपको दोनों एग्जांपल देकर के समझाना चाहता हूं कि रेगुलर बेसिस पे क्या होता है बिजनेस और इर्रेगुलर बेसिस पे क्या होता है। मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। आप यहां पे रेगुलर बेसिस पे, जैसे मैं आपको बताता हूं, 20 लाख का कार शोरूम से मिस्टर ए ने परचेज किया, मिस्टर ए ने परचेज किया, और यहां पे बी इज द ऑनर ऑफ कार शोरूम, बी इज द ऑनर ऑफ कार शोरूम, और ए ने बी से कार को 20 लाख में परचेज किया। अब इनका रेगुलर बेसिस हो गया, इनका रेगुलर बेसिस हो गया बिजनेस, क्योंकि ये कार का एजेंसी है इनके पास, इनके यहाँ डेली कार बिकती है, प्राइस पे प्रॉफिट अर्निंग के हिसाब से इनके यहाँ कार में बिकती है। और अब इन्होंने 5 ईयर इसको यूज किया, यूज करने के बाद इसको सेल करना चाह रहे हैं, इनको प्रॉफिट मिलेगा नहीं। जब इनको प्रॉफिट मिलेगा नहीं तो ये लॉस में जाएंगे, तो इनका बिजनेस की फीचर्स नहीं हुआ। और लेकिन जो प्रोडक्शन मोबाइल का 1000 पीस, 2000 पीस, 10 लाख पीस जो प्रोडक्शन हो रहा है, कार की प्रोडक्शन हो रही है, वो रेगुलर बेसिस पे जा रही है। तो इसी के लिए कहते हैं बिजनेस को, ये हमारा रेगुलरिटी बना के रखता है, ये कंटिन्यूटी बना के रखता है, ये एकदम रनिंग फ्लोइंग में रहता है, और इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट की बात होती है तो बिजनेस होता है, कोई भी बिजनेस लॉस
लॉस में नहीं करना चाहता है वो। अब फॉर एग्जांपल छोटा सा और लेकर के लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दे देते हैं एक और रेगुलर बेसिस का। अभी आपने मोबाइल किसी फ्रेंड को सेल किया तो आप डिस्काउंट में दोगे या कम प्राइस में दोगे, आप लॉस में दोगे, सेम रेट पे नहीं सेल कर पाओगे, तो आप बिजनेस नहीं कर पाए क्योंकि आपने 10,000 में खरीदा था और उसको सेल किया 8,000 में, 5,000 में, तो कहां से आपका बिजनेस हुआ? बिजनेस कब होता? रेगुलरली जब आप 11,000 12,000 में बेचते, लेकिन हम उसको न्यूली खरीदते हैं तो हमारा रेगुलर बेसिस पे होता। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये टॉपिक खत्म करके फिर आपको रिवाइज कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस इज अ रिस्क। कोई पूछे व्हाट इज बिजनेस, इट्स इज आल्सो नोन एज अ बिजनेस इज अ रिस्क। बिजनेस में हमारा रिस्क होता है। जैसे अभी क्या रिस्क है मैं आपको बता दूं। ड्यू टू कोविड आपको पता होगा मेनी बिजनेस हैज डाउन, सारे बिजनेस डाउन हो गए। इट इज अ नेचुरली अफेक्टेड। अभी आप फ्लड आ जाए, सुनामी आ जाए, नेचर हमारा सपोर्ट ना करे, कई सारा हमारा जो क्या बोलते हैं मटेरियल गोडाउन्स में रखा हो, अचानक फ्लड आ जाए, अचानक अर्थक्वेक आ जाए, सारे मटेरियल डिस्ट्रॉय हो जाए। अब ये बताइए, ये टॉपिक चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में, एलिमेंट ऑफ रिस्क लास्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिस्कस करते हैं अभी डिटेल में। अभी आप 4 पॉइंट को समझिएगा, डिटेल में देखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।